My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some questions that are important for your examination. Start करते हैं session को, and if you have not already subscribed, तो एक बार चैनल को subscribe कर लेना. Also press the bell icon, and you can join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. Start करते हैं. So first question: a printer numbers the pages of the book starting with 1. If it uses a total of 3189 digits, so how many pages does that book have? Number of digits used are 3189 and the book is starting with obviously page number 1. ठीक है, so number of digits used हमें given है और हमें identify करना है कि how many pages must be there in that book. Okay, so for page number 1 number of digits used will be equal to 1. Again, number of digits कितना है? From 1 to 9 every number is a single digit number. So in every number of digits used will be 1 only. ठीक है, so total 9 numbers are there from 1 to 9, so 9 into 1 number of digits used will be equal to 9 digits. Then from 10 to 99 we have all 2-digit numbers, so these will be using total 2 digits each. Total numbers हुए 90, तो 90 into 2 number of digits used will be 180 in this case. इसके बाद में start में 3-digit numbers from 100 to 999. Total numbers will be 900 into 3, so 2700 digits will be used with these. So कितने digits हमारे already exhaust हो गए in this case? 9 by single digit numbers, 180 by 2-digit numbers and 2700 by 3-digit numbers. Total हो गया हमारा 2700 plus 180, 2880. 2889 digits have already been exhausted. Total digits used are 3189, which is 300 more. And after 999 we have 4-digit numbers starting from 1000. कितने numbers यूज होंगे? अगर हमारे n numbers यूज होते हैं टोटल starting from 1000 और every number will be using 4 digits total, तो 4n is equal to 300, क्योंकि 300 digits और यूज करनी है हमको, यानी कि n comes out to be equal to 75. 75 more pages will be used from starting from 1000. तो नंबर क्या होगा हमारा? That will be 999 plus 75, यानी कि 1074 will be last page number and not 1075. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हमने 1000 से किया, तो 999 plus 75 करोगे. ओके, last page number will be 1074. So total pages that the book has is equal to 1074. Next question. Arun, Bhavna and Chandan are friends. After 5 years, Arun's age will be 3 times that of Bhavna's age 5 years ago. Chandan's present age is equal to half of Bhavna's age 10 years from now. The sum of their present ages is 66 years. After how many years from now will Arun's age be? Will Arun's age be thrice of Chandan's age at present? That is the question. Okay, Arun, Bhavna and Chandan. पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है आफ्टर 5 years Arun's age will be 3 times that of Bhavna's age 5 years ago. अगर हम somehow एक ही वेरिएबल अननोन एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं तो दैट विल बी बेस्ट अप्रोच, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा फंसाने वाली है. आफ्टर 5 years अरुण की एज क्या होगी? 3 टाइम्स होगी किसका? भावना की एज, जो कि 5 साल पहले थी. सो एट प्रेजेंट एजेस हमें पता नहीं है, वही तो पता ही करना है. अरुण, भावना एंड चंदन. सो कोशिश करते हैं इक्वेशन बनाने का. आफ्टर 5 years अरुण एज विल बी 3 times दैट ऑफ भावनाज एज 5 years ago. ओके, सो एट प्रेजेंट लेट अस अज्यूम कि भावना का एज इज इक्वल टू बी. तो 5 years ago this will be 5 years less, b minus 5 years ago. And question is saying Arun's age 5 years after will be 3 times that of Bhavna's age 5 years ago. यानी कि 5 years later age of Arun will be 3 times of this value, यानी कि 3 times of b minus 5 और 3b minus 15. ये कब हो रहा है? 5 years later. तो एट प्रेजेंट अरुण का एज क्या होगा? दैट विल बी 5 years lesser than 3b minus 15. So that will be 3b minus 20. क्या किया हमने? पहले एज्यूम किया भावना की एज एट प्रेजेंट हमने माना कि भावना का एज क्या है? दैट इज इक्वल टू बी. अगर एट प्रेजेंट बी है तो 5 years लेस
बिफोर क्या होगा, 5 years एगो क्या होगा, b-5 होगा। और 5 years एगो का जो भावना का एज है उसका 3 टाइम्स एज है अरुण का आफ्टर 5 years, यानी कि अरुण से एज आफ्टर 5 years विल बी 3 times b-5 which is 3b-15 and that is after 5 years. तो at present Arun's age will be 5 years lesser, तो 3b-5 3b-15 -5 that will be 3b-20। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इसके बाद में आ रहा है चंदन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ भावना's एज 10 years from now। So 10 years from now age of Bhavna will be b+10 and the present age of Chandan is half of that. So multiply this by 0.5. So that will be 0.5b plus 5. That is present age of Chandan. अब चीजें आसान हो गई। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 66 years. So 3b-20 that is age of Arun plus age of Bhavna plus 0.5b plus 5. This is equal to 66. So 3 plus 1 plus 0.5 4.5b minus 20 plus 5 minus 15. So right hand side में जाके this will be 66 plus 15 which is 81. 81. तो b will be equal to 81 upon 4.5 which is 9/2 basically। ठीक है, डेसिमल हटाया, सो 810/45 9 से जाएगा, बचेगा 90/5। सो b इज इक्वल टू 18 आ गया। b इज इक्वल टू 18 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ विल अरुण's एज बी थ्राइस ऑफ चंदन's एज एट प्रेजेंट। तो एज ऑफ चंदन क्या होगा, अगर b इज इक्वल टू 18 है तो 0.5b विल बी 9 + 5 14 विल बी एज ऑफ चंदन एट प्रेजेंट एंड एज ऑफ अरुण एट प्रेजेंट विल बी 3b-20। तो 54 - 20 34 years। क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ विल अरुण's एज बी थ्राइस दैट ऑफ चंदन's एज। तो एट प्रेजेंट अरुण और चंदन की एज है 34 and 14। ठीक है, और कह रहा है थ्राइस ऑफ चंदन's एज एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट 14 है, तो हमें चाहिए अरुण's एज 42, दैट विल बी आफ्टर 8 years। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हम 3 अननोन भी मान सकते थे कि अरुण की एज ए मान लेते, भावना की एज बी मान लेते, चंदन की एज सी मान लेते, फिर फर्दर इक्वेशन बनाते, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर थोड़ा सा उससे हौच पौच ज़्यादा होता। ठीक है, तो बेटर होगा ऐसे केसेस में कि थोड़ा सा टाइम लो, बट एक ही अननोन अज्यूम करो। जितने कम अननोन अज्यूम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए चीज़ें बाद में स्मूथ हो जाएंगी। इनिशियली पहली इक्वेशन बनाने में, पहले समझने में थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, पहले चलो एक बार करके देख लेते हैं। 3 अननोन मान लेते हैं कि अरुण की एज मान लेते हैं एट प्रेजेंट ए है, भावना की एज बी है और चंदन की एज सी है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर 5 years अरुण's एज विल बी 3 times दैट ऑफ भावना's एज 5 years ago। आफ्टर 5 years यानी कि a + 5 दिस इज इक्वल टू 3 times of भावना's एज 5 years ago and 3 times of b-5। so that implies that a + 5 is equal to 3b-15। ओके, ठीक है, और चंदन's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ भावना's एज 10 years from now। सो c इज इक्वल टू 1/2 ऑफ b+10, यानी कि 0.5b + 5। अब बेस्ट ये रहेगा कि यहाँ से भी हम सारी वैल्यूज़ को ए में कन्वर्ट कर दें, बी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि बी से ये चंदन भी कनेक्ट हो रहा है, बी से ये भी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से भी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ए इज इक्वल टू 3b-20। ओके, अब इसके बाद की कहानी वही है जो सेम हमने पहले की थी। ठीक है, तो कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 240-liter mixture contains milk and water in the ratio 5:3. A certain amount of the mixture is removed and replaced with 40 liters of another mixture containing milk and water in the ratio 1:1. If the final mixture contains 40% water, then find the amount of milk in the removed mixture. हमें चाहिए जो हमने मिक्सचर रिमूव किया है उसमें अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा। ओके, सो उसके लिए पहले फाइंड आउट करना होगा कितना हमने अमाउंट रिमूव किया है इन टोटल। इनिशियल जो हमने मिक्सचर लिया दैट 240 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स milk and water in the ratio 5:3. So water is 3 parts out of total 8 parts in that, और हमने उसमें ऐड किया है, कुछ पार्ट रिमूव किया, तो उसके बाद भी हमारा रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी अनचेंज्ड। आफ्टर दैट वी रिप्लेस्ड दैट पार्ट विल 40 liters of another mixture that contains milk and water in the equal ratio 1:1, and finally our concentration of water becomes 40%। ठीक है, तो इनिशियली our mixture had milk and water in the ratio 5:3। So water was 3 parts out of total 8, 3/8, 37.5%. And second mixture which we are adding, that has 50% water,
50% और ओवरऑल एवरेज हमारा 40%, तो एलिगेशन लगा देते हैं. सो इन द इनिशियल मिक्सचर वी हैड 37.5% वाटर. वाटर में एलिगेशन लगा रहे हैं तो सारी वैल्यूज वाटर में ही लेना है, गलती नहीं करना है. 37.5%, 50% इन द सेकंड मिक्सचर एंड एवरेज इज 40%. सो 50 minus 40 is 10. 40 minus 37.5 is 2.5. रेशियो आ जाएगा 10:2.5 which is 4:1. So we have taken, if we have taken 4 parts of the first mixture, तो second part का हमने second mixture का 1 part लिया होगा. और हमें ये पता है कि second mixture का we have taken 40 liters. तो यानी कि 1 part is equal to 40 liters. तो 4 parts, 4 units will be equal to 160 liters. और ये 160 liters कैसे आया? जब हमने कुछ पार्ट रिमूव किया है. तो इनिशियली था तो 240, बट बचा है 160, यानी कि वी हैव रिमूव्ड 80 liters आउट ऑफ इट. तभी तो बचेगा 160 लीटर्स. अभी जो 80 लीटर्स हमने रिमूव किया है, इसी में क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ मिल्क इन द रिमूव्ड मिक्सचर. 80 रेशियो था मिल्क वाटर का 5:3. सो टोटल 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 80 लीटर्स. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लीटर्स. तो 5 यूनिट्स विल बी 5 × 10, यानी कि मिल्क विल बी 50 लीटर्स. मिल्क होगा 50 लीटर्स और 30 लीटर्स हो जाएगा वाटर. ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर. ओके, क्लियर है. और बाकी रेशियो से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते थे कि हमें ये पता ही था कि टोटल इनिशियली 240 लीटर्स है. रेशियो है मिल्क एंड वाटर का 5:3. तो मिल्क कितना हो जाएगा? टोटल 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 240, 1 यूनिट इज इक्वल टू 30. तो 150 लीटर्स इज मिल्क एंड 90 लीटर्स इज वाटर. नाउ लेट अस अज्यूम कि हमने इसमें से, क्योंकि टोटल 8 यूनिट से 8x हमने रिमूव कर लिया, तो अगर 8x रिमूव किया होगा तो 5x मिल्क रिमूव हो जाएगा, 3x वाटर विल बी रिमूव्ड, एंड देन वी एडेड 40 लीटर्स मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मिल्क एंड इक्वल वाटर. तो 20 लीटर्स विल बी मिल्क, 20 लीटर्स हो जाएगा वाटर. तो मिल्क कितना हो गया? 150 + 20, 170 - 5x, and water is 110 - 3x, and the ratio is 40% वाटर है, यानी कि 2/5 वाटर है. तो रेशियो इज 3:2. ओके, तो 170 - 5x upon 110 - 3x, this is equal to 3/2. So x becomes equal to 340 - 330, 10. x इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि हमने 50 लीटर्स रिमूव किया है मिल्क. जो हमने सॉल्यूशन रिमूव किया उसमें 50 लीटर्स वॉज मिल्क, अदरवाइज 80 लीटर्स टोटल हमने सॉल्यूशन रिमूव किया था. बट क्वेश्चन क्योंकि अमाउंट ऑफ मिल्क पूछ रहा है तो आंसर हमारा 50 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the probability that a number selected at random from the first 50 natural numbers is a multiple of either 4 or a 5 or is a prime number, that probability is equal to m upon n. यहाँ पे कि m and n both are co-primes, यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. m and n are co-primes, यानी कि HCF of m and n that is equal to 1. So we have to find sum of m and n in that case. What will be sum of m and n? Okay. Probability that a number selected at random from the first 50 natural numbers is a multiple of either 4 or 5 or is a prime number. 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? Multiples of 4 will be 4, 8, 12, 16 and so on, and last will be 48. So total 12 numbers will be there. 12 into 4, 48. So 12 numbers होंगे, multiples of 4. Similarly multiples of 5, 5, 10, 15, 20, क्योंकि फर्स्ट 50 में लेना है, ठीक है. सो 50 भी होगा. 10 मल्टीपल्स ऑफ 5. अब यहाँ पे डबल काउंटिंग भी हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 एंड 20 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, तो ये डबल काउंट हो रहा है. अब जैसे 20 काउंट हुआ है, सिमिलरली 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 20. तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? नेक्स्ट नंबर भी 40. ठीक है. जब भी हम ऐसे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं तो उनमें जो कॉमन टर्म्स आएंगे उनका गैप क्या होगा? गैप ऑफ दोज कॉमन टर्म्स विल बी एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस. तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 लेंगे, दैट इज 20. तो जो नई हमारी एपी बनेगी कॉमन टर्म्स की, दैट विल बी हैविंग नंबर्स एट अ गैप ऑफ एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस. ठीक है. यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 20 है, नेक्स्ट आएगा 40. सो ओनली 2 सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर डबल काउंटेड. तो 12 + 10 इज 22 और -2 करोगे तो 22 - 2 20 सच नंबर्स आ गया हमारा. 20 नंबर्स आर देयर व्हिच आर ईदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और अ मल्टीपल ऑफ 5. लेकिन अब साथ में एक एडिशनल चीज़ और दी है कि प्राइम नंबर होंगे वो भी चलेगा, और इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स भी हमें काउंट करने हैं, और इन टोटल प्राइम नंबर्स
लेस देन 50 दैट इज इक्वल 15. प्राइम नंबर्स लेस देन 100 होते हैं 25, आउट ऑफ विच 10 आर बिटवीन 50 एंड 100 और 15 आर लेस देन 50. ठीक है, तो इनको भी काउंट करना है. दीज ऑल्सो हैव टू बी काउंटेड. बस एक क्वेश्चन रखना है यहाँ पे. वो क्वेश्चन क्या होगा कि 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. यानी कि 5 को हमने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है. तो अब जब यहाँ पे 15 को काउंट कर रहे हैं तो दीज इंक्लूड 5 एज वेल. तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज डबल काउंट हो जाएगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो ऑलरेडी हमने 20 इंक्लूड किया हुआ है. 20 प्लस 15 -1 करेंगे. और ये -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 को डबल काउंट नहीं करना है. क्योंकि 34 नंबर्स इन टोटल होंगे जो हमारे काम के हैं. तो प्रॉबिलिटी आ जाएगा 34/50. जो फर्दर सिंप्लीफाई होकर जाएगा 17/25. तो m/n इज 17/25. m इज इक्वल टू 17, n इज इक्वल टू 25. सम हमारा m प्लस n विल बी इक्वल टू 42. m प्लस n 42 आ जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक बार लिखने को लिख भी लेते हैं. ऑल 15 प्राइम नंबर्स जस्ट फॉर द रिकॉल. अदरवाइज ये पता होना चाहिए कि लेस देन 50 प्राइम नंबर्स आर 15, बिटवीन 51 एंड 100 आर 10 एंड टोटल लेस देन 100 आर 25. ठीक है, स्टार्टिंग विद 2, 2, 3, 5, 7, 11, then 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43. एक सेकेंड, 31, 37, 41 रह गया. 41, 43 and last is 47. These are 15 prime numbers that are less than 50. Okay. और अदरवाइज जब भी कभी ऐसा केस करेंगे तो ये भी कर सकते हैं. लेट्स से there is a set of A that contains multiples of 4. there is a set B that contains multiples of 5 और set C है हमारा जो कंटेन करता है ऑल प्राइम नंबर्स. और हमें चाहिए क्या? A यूनियन B यूनियन C. तो A यूनियन B यूनियन C दिस विल बी इक्वल टू A प्लस B नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C माइनस दो के पंचेस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A और प्लस लास्ट में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ओके, सो ए ग्रुप में कितने आए थे हमारे? 12 थे. मल्टीपल्स ऑफ 5 वर 10 एंड प्राइम नंबर्स वर 15. 12 प्लस 10 प्लस 15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 4 का मल्टीपल भी और प्राइम नंबर भी. क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 4 का मल्टीपल और प्राइम नंबर भी हो? नॉट पॉसिबल, तो 0 हो जाएगा. देन बी इंटरसेक्शन सी मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज द प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होगा विच इज इक्वल टू 5, तो -1. एंड देन सी इंटरसेक्शन ए यानी कि प्राइम नंबर, एक सेकेंड, सी, ओहो ये तो लास्ट में आ रहा था. ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 4 और 5 था. ए इंटरसेक्शन बी में था हमारा 4 एंड 5. ठीक है, तो 0 लास्ट में आएगा क्योंकि सी इंटरसेक्शन ए में हमारा होगा 4 का मल्टीपल और प्राइम भी, दैट इज 0. और ए इंटरसेक्शन बी इज 4 का मल्टीपल एज वेल एज 5 का मल्टीपल यानी 20 का मल्टीपल. तो ओनली 2 नंबर्स आर देयर. लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि 4 का मल्टीपल भी हो, 5 का मल्टीपल भी हो, प्राइम नंबर भी हो, नॉट पॉसिबल. दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. नंबर आ जाएगा हमारा 37 - 3 दैट इज इक्वल टू 34. सो इन जनरल जब जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे ऐसे हम सेपरेटली ग्रुप्स बनाएंगे, अदरवाइज स्ट्रेट अवे सॉल्व करेंगे. बट जब स्ट्रेट अवे सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन जरूर रखना है कि कहीं पे कोई डबल काउंटिंग तो नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an arithmetic progression is given by Sn is equal to 3n square plus 5n. If there are k terms of the progression which are multiples of 8 as well as less than 200, then find value of k. So sum of n terms Sn is given as 3n square plus 5n. तो टू फाइंड आउट अवर एपी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें पहला टर्म मिल जाए, दूसरा टर्म मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना. ठीक है, तो सम ऑफ वन टर्म n इज इक्वल 1 पुट करें तो सम ऑफ वन टर्म्स मिल जाएगा. सम ऑफ वन टर्म्स विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 8. और सम ऑफ वन टर्म्स बेसिकली क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट टर्म नंबर 1 विच इज इक्वल टू 8. नाउ इफ यू पुट n इज इक्वल टू, तो सम ऑफ टू टर्म्स मिल जाएगा. दैट विल बी 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो 12 प्लस 10 22. और सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा? पहला टर्म का सम और दूसरे टर्म का सम, t1 प्लस t2. तो अगर t1 प्लस t2 आ रहा है 22, तो क्लियरली यहाँ से हमें t2 मिल रहा है विच इज इक्वल टू 22 माइनस 8 14. तो पहला टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 14 है, जंप आ रहा है 6 का. यही 6 हमारा कॉमन डिफरेंस होगा इस एपी का. तो फर्स्ट टर्म आ गया 8, देन 14, देन 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 6 38,
एंड सो ऑन. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ देयर आर k टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन विच आर मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड आर ऑल्सो लेस देन 200. ओके, तो पहला टर्म हमें मिल रहा है 8, नेक्स्ट क्या मिलेगा 32. अगेन सिमिलर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें कौन से टर्म्स चाहिए, वो टर्म्स चाहिए जो कि दो एपी का पार्ट होंगे. देखो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है, वो भी तो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं. 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन. तो ये हमारी सेकंड एपी है. पहली एपी है 8, 14, 20, 26. अब दोनों में कॉमन टर्म्स क्या होंगे, कॉमन टर्म्स होंगे हमारे जिनका की कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, यानी कि 8 होगा हमारे मल्टीपल्स ऑफ 8 का सीरीज का कॉमन डिफरेंस. और यहाँ पे है 6, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 विल बी 24. तो पहला टर्म आ रहा है 8, नेक्स्ट आ रहा है 32, फिर नेक्स्ट आएगा 32 प्लस 24. तो सच टर्म्स विल बी 8, then 8 plus 24, that is 32, then 32 plus 24, 56, then 56 plus 24, 80 and so on. और हमें चाहिए ऑल दोज टर्म्स विच आर लेस देन 200. लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है, यानी कि 200 अगर इसका पार्ट होगा, जो कि है शायद इसका पार्ट, ठीक है 200 भी आ रहा होगा, तो 200 आएगा तो हमें इंक्लूड 200 को नहीं करना है. 200 शुड नॉट बी इंक्लूड. तो 8 अगर फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का, देन 32 है, कॉमन डिफरेंस है 24 का, तो जनरल टर्म nth टर्म विल बी इक्वल टू, ठीक है, अगर k टर्म्स है मान लिया kth टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी 8 प्लस k माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस विच इज 24. तो 24k minus 24 plus 8, 24k minus 60. And this should be less than 200. So 24k minus 16 should be less than 200. So 24k becomes less than 216. So k becomes less than 216 by 24, which is equal to 9. So k should be less than 9. So k का maximum value will be equal to 8. Like maximum we can take 8 such terms. So value of 8 will be equal to, value of k will be equal to 8. Total 8 terms will be there, which are a multiple of 8 in this progression as well as less than 200. अगर 200 को भी इंक्लूड करते तो फिर लेस देन की वजह इक्वालिटी होता है, और लेस देन इक्वल टू 9 होता, तो फिर हमारा आंसर 9 हो जाता है उसके. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A person buys 2 watches for rupees 4500 each and sets the same markup price for both. He offers successive discounts of 20%, 10%, and a final discount of rupees 18 on cash payment on the first watch, and thus earns a profit of 2%. If he sold the second watch after giving a discount 25%, then find the amount of profit made on the second watch. Second watch में क्या profit बनाया होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस सेम है और साथ में मार्क प्राइस इज ऑल्सो सेम. तो हमें पहले तो मार्क प्राइस आइडेंटिफाई करना होगा, क्या होगा. CP इज गिवन, CP for both is rupees 4500. Let us assume कि mark price is equal to rupees M. So for the first watch it is given that he has offered successive discount of 20%, 10% और फिर further एक discount दिया है 18 रुपीज़ का. So if mark price is equal to M, तो after first discount amount क्या हो जाएगा, M into 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट है. अगर 5 में 1 का डिस्काउंट दिया तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 4/5 ऑफ दैट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट. देन सेकंड डिस्काउंट है 10% का, 10% यानी 1/10 का डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट है 1/10 का, तो 9/10 विल बी रिमेनिंग वैल्यू, तो इंटू 9/10. दिस विल बी अमाउंट आफ्टर सेकंड डिस्काउंट. और थर्ड डिस्काउंट का एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, तो माइनस ₹18. दिस कम्स आउट टू बी, क्या गिवन है, अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 2%. तो 2% प्रॉफिट है और रुपीज़ 4500 कॉस्ट है, तो 2% विल बी इक्वल टू ₹90. प्रॉफिट ऑफ ₹90. So selling price will be 4500 plus 2%, यानी 4590. So 9 4s are 36 by 50, यानी 18m by 25. This will be equal to 4590 plus 18. So 4608. 18 simplify कर लो. 18 2s are 36, बच गया 100. 18 5s are 90. 108, 256. तो m comes out to be equal to 256 into 25. तो 256 को लिख सकते हैं 64 into 4. This will be 6400. Mark price is 6400 rupees.
एंड सिंस मार्क प्राइस दोनों ही के लिए सेम है, तो सेकंड वॉच का मार्क प्राइस विल आल्सो बी इक्वल टू 6400. और इन सेकंड वॉच देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 25% व्हिच इज डिस्काउंट ऑफ 1/4, तो माइनस 1600. तो सेलिंग प्राइस फॉर सेकंड वॉच विल बी 4800 rupees. Cost price is 4500, selling price is 4800, profit will be rupees 300, option B. Okay, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. Next question. In a triangle ABC, sides AB, BC, and CA are 9, 7, and 8 centimeter respectively. If the length of the median drawn from vertex C is x centimeter, then find a value of 2x का integral part if this is the greatest integer function. Integral part of 2x निकालना है, जहाँ पे कि हमें गिवन है कि मीडियन का लेंथ इज x सेंटीमीटर. ओके, और हमें साइड्स गिवन है ए बी बी सी एंड सी है 9, 7 एंड 8. एक सेकंड, सी को टॉप पे बना देते हैं. सी ए बी, ए बी इज इक्वल टू 9, BC is equal to 7, and CA is equal to 8. Then we have to draw median from vertex C. ठीक है, this is median. So let us say this point is D. So AD will be equal to DB. And we have to find out length of the median. जब भी length of the median find out करना हो, हमेशा वहाँ पे याद करना है अपोलोनियस थ्योरम. Okay. So with Apollonius theorem, square of median, that is CD square, plus square of half of the base, यानी कि CD square plus AD square लिख दो, चाहे BD square को बात है कि CD square plus BD square whole multiplied by 2, that is equal to AC square plus BC square. याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है. तुम इंस्टेड मान लो कि जो CD हमारा मीडियन है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस. ठीक है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो हमेशा तो नहीं होगा, बट मान लो कि जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे क्या अप्लाई होगा. तो इन दैट केस अगर CD परपेंडिकुलर है हमारा बेस AB पे, तो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, और CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर. ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा अपोलोनियस थ्योरम आ जाएगा. ठीक है, सो वहाँ पे भी अप्लाई होगा जहाँ पे कि परपेंडिकुलर है, जहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होगा. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली कॉस फंक्शन कॉस थीटा का ट्रायंगल में जब वैल्यू देखोगे तो उससे प्रूफ इसका मिलता है, बट फिलहाल हमें प्रूफ की जरूरत नहीं. फिलहाल डायरेक्टली इसको याद रखना है कि 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स. ठीक है, सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर प्लस AD इज 9/2 4.5, तो 4.5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर which is 8 square plus BC square which is 7 square. So 8 square is 64 plus 49, 113. तो CD square plus 4.5 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 20.25. 20.25. ठीक है, जब भी कभी हम 4.5 45 का फॉर एग्जांपल स्क्वायर निकालना है, तो अगर यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो पहले करो 5 का स्क्वायर विच इज 25, देन मल्टीप्लाई 4 बाई द नेक्स्ट नंबर, 4 × 5 20 20. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें करना है 65 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, 6 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से 6 × 7, तो 4225. अब अगर 6.5 होता तो 42.25 हो जाएगा. ओके, सो इन दिस केस आगे हमारा 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर यानी 2 टाइम्स CD स्क्वायर प्लस 40.50, दिस इज 113. तो 113 minus 40.50, 113 minus 40 is 73, 72.50, and hence CD square comes out to be 36.25. So CD आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 36.25. Now square root of 36 that is equal to 6, and square root of 49 that is equal to 7. तो slightly larger than 36 आ रहा है, 36.25 only. तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.25 विल बी रफली 6.04 या उससे भी छोटा होगा.
6.03 के आसपास का वैल्यू होगा। ओके, ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो कि कहाँ पे वैल्यू जाएगा, तो अगर हम 61 का स्क्वायर फॉर एग्जांपल निकालें, ठीक है, 6.1 का स्क्वायर जो कि चेक करना पड़ेगा, तो 61 का स्क्वायर होगा 61 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61, ठीक है। n प्लस वन स्क्वायर इज n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, n प्लस वन स्क्वायर इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, ठीक है। तो उसी को लिखने का तरीका है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, 2n प्लस वन क्या है, n प्लस वन, दैट इज वाई 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61, तो 3600 प्लस 120 3721। तो क्लियरली हमारा नंबर इससे छोटा आ रहा है, तो 6.1 से छोटा ही वैल्यू आने वाला है हमारा, 6.03 आएगा काइंड ऑफ, ठीक है। 0.0302 कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें निकालना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x, x आ रहा है 6.03, तो 2x विल बी 12.06 के आसपास, तो क्लियरली दिस विल बी इक्वल टू 12, ऑप्शन डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two natural numbers x and y have an HCF of 12 and their product is 4320, तो how many such pairs x, y are possible? x and y दो numbers हैं, HCF 12 आ रहा है and product is 4320, so if we assume this highest common factor is 12, तो x must be a multiple of 12, let us say x is 12a, y is 12b, so since 12 is the highest common factor, तो a and b must be co-prime, इनका कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो फिर HCF चेंज हो जाएगा हमारा, so highest common factor of a and b must be equal to 1 only, and the product of these two x and y is 4320, so 12a into 12b is equal to 4320, so 144ab is 4320, 144 से काटा पीटी मचा दो 30 आ जाएगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 30 आ गया। अब हमें a और b को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, so we can write this as 1 into 30 और 2 into 15, 3 into 10 और 5 into 6, ठीक है, ये पेयर बन सकते हैं। बट सिंस एक्स एंड वाई का ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, नंबर्स मेंशन है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे 1 इंटू 30 है वैसे 30 इंटू 1 भी होगा, इनको स्वैप भी करोगे तो टोटल हमारे पास पेयर्स कितने आएंगे, 4 इंटू 2 8 पेयर्स आएंगे इन टोटल, 8 पेयर्स, यानी कि एक नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा आ गया ए और बी की वैल्यूज पुट करोगे, तो जैसे एक एग्जाम्पल आ गया हमारा एक्स कैन बी 12 इंटू 1 एंड वाई कैन बी 12 इंटू 30 यानी 360, सिमिलरली 360 एंड 12 विल ऑल्सो बी ए पेयर, दीज टू आर डिफरेंट पेयर्स बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई को हमने वैल्यूज दिया है, पहले वाले केस में एक्स 12 आ रहा है, वाई 360 आ रहा है, सेकंड वाले केस में एक्स 360 आ रहा है, वाई 12 आ रहा है, तो हर एक केस में ऐसे दो दो पेयर्स बनेंगे और टोटल 4 पेयर्स हैं, तो 4 इंटू 2 8 विल बी आर आंसर, ऑप्शन डी 8 आंसर होगा, 4 आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई मेंशन नहीं होता और क्वेश्चन ये कहता है इफ देयर आर टू नंबर्स विच हैव एन HCF ऑफ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4320, ठीक है, तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच, तो उस केस में हमारा आंसर होता है, या हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, तो फिर हमारा आंसर होता है उस केस में 4, बिकॉज फिर वहाँ पे नंबर्स हमें मेंशन नहीं थे, बट यहाँ पे क्लियरली उनको नहीं किया है, ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा है, तो आंसर विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 कंटेनर्स A that is a cone, B that is a cylinder, and C that is a sphere, and they have radii in the ratio 1:2:3 respectively. The heights of the cone and cylinder are equal to the diameter of the sphere. Liquid is poured into these containers at a constant rate. अब क्या रेट है वो पता नहीं है, बट at a constant rate liquid is being poured. If it takes exactly 27 minutes to fill the container C, how much total time in units will it take to fill containers A and containers B in total together? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली वॉल्यूम निकाल नहीं सकते, वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्या है, रेडियाई का रेशियो गिवन है और साथ में रिलेशनशिप ऑफ हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर विद द डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट इज ऑल्सो गिवन, ओके। सो ए बी एंड सी, ए इज अ कोन, बी इज अ सिलेंडर एंड सी इज अ स्फीयर। नाउ रेशियो ऑफ रेडियस इज 1, 2 एंड 3। और सिंस हमारे लिए रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो हम मान लेते हैं कि रेडियस फॉर cone is equal to 1 unit, for cylinder is equal to 2 units, and for sphere is equal to 3 units. Then height के लिए given है कि height of cone as well as cylinder is equal to diameter of the sphere. तो sphere का radius 3 है, diameter will be 6, तो height of these two is equal to 6. अब radius भी पता है, height भी पता है, volume निकल आएगा। तो volume for cone
will be 1 by 3 pi r square h. For cylinder, this will be pi r square h. And for sphere, this is 4 by 3 pi r cube. So this is 1 by 3 pi r square h. So 1 square into 6. So 6 by 3, need 2 pi. 2 pi. For cylinder, this will be 2 square into 6. So 24 pi. And for sphere, this will be 3 cube into 4 by 3. 27 by 3, 9 into 4, 36 pi. Okay, रेशियो आ गया हमारा 2 pi, 24 pi एंड 36 pi. अब चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर लो इनको, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रेशियो से ही मतलब है. तो हमारा आ रहा है 1:12:18 वॉल्यूम्स का रेशियो. एंड वी नो दैट इट टेक्स एग्जैक्टली 27 मिनट्स टू फिल द कंटेनर सी. सो 18 मिनट्स फिल करने में टाइम लग रहा है 27 मिनट्स का. एंड क्वेश्चन आस्किंग कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन इन फिलिंग कंटेनर्स ए एंड कंटेनर बी, यानी कि टोटल कितना फिल करना है, 13 फिल करना है. 18 फिल करने में टाइम लगा 27 का, तो 13 फिल करने में टाइम लगेगा 13 by 18 into 27. दिस विल बी द टाइम. 13 3 is 39 by 2, 19.5 minutes will be our answer. Option C. The containers A and B together can be filled in 19.5 minutes. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A train X at 72 km per hour crosses the platform in 41 seconds. It crosses another train Y running at 90 km per hour in the opposite direction in 20 seconds. If the lengths of trains X and Y are in the ratio 2:3, then find the time taken by train Y to cross the same platform. Time taken by train Y to cross the same platform. अब हमें स्पीड्स गिवन है किलोमीटर पर आवर में, बट फिर इसके बाद में टाइम गिवन है सेकेंड्स में. तो स्पीड्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में. 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एक्स का स्पीड आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. एंड फॉर ट्रेन वाई स्पीड विल बी 90 है, 90 यानी 18 into 5. सो दैट इज 5 into 5, 25 मीटर पर सेकेंड. एंड ट्रेन एक्स इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इन 41 seconds. एंड ट्रेन एक्स एंड वाई आर टू क्रॉसिंग ईच अदर इन 20 seconds. जब ईच अदर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन. और हमें गिवन है कि लेंथ का रेशियो है 2:3. तो ये फॉर ट्रेन एक्स लेंथ इज 2L, so 3L is the length for the second train. So total distance traveled when they are crossing each other is equal to 5L. टाइम लग रहा है 20 का. एंड सिंस ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो स्पीड ज़्यादा होगा. एडअप होगा 20 + 25, स्पीड हो जाएगा हमारा 45. तो डिस्टेंस ट्रेवल विल 45 into 20, दैट इज 900 मीटर्स. तो यहाँ से L कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180 मीटर्स. एंड देन क्वेश्चन आस्किंग अबाउट टाइम टेकन बाई ट्रेन वाई टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म. तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी चाहिए, तो वो हमें पहली इन्फॉर्मेशन से मिलेगा. टाइम लग रहा है 41 सेकंड्स का फर्स्ट ट्रेन को, और फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है 2L. तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2L प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और 2L है 360. तो 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट इज इक्वल टू 41 seconds. स्पीड इज 20, 41 into 20, दैट इज 820. तो P इज इक्वल टू 820 minus 360, so that is 460 meters. Length of platform is 460. The time taken by train Y will be equal to 3L, length of the train itself plus length of platform divided by speed of the train. The time will be equal to distance traveled will be equal to 3L, length of second train plus length of platform, which is 460, divided by speed of second train, which is 25. So 540 plus 460, that is 1000 by 25, and hence equal to 40 seconds. Option C आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके. Next question. What is the remainder when 2 to the power 100 plus 3 to the power 100 is divided by 7?
2 to the power 100 plus 3 to the power 100 is divided by 7. तो दोनों को सेपरेटली देख लेते हैं कि व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 100 is divided by 7. ठीक है, एंड देन व्हाट विल रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 100 is divided by 7. So 2 square is 4, 2 cube is equal to 8. 8 हमारा होता है 7 plus 1. जैसे ही रिमाइंडर 1 मिल जाए तो फिर वहाँ से उसके बाद साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी. 2 to the power 3 पे हमें मिल रहा है रिमाइंडर 1 का 7 से डिवाइड करने पे. तो सिमिलरली अगर 2 to the power 6 पे ही बात करें तो क्या होगा, दिस विल बी 8 स्क्वायर और 7 plus 1 होल स्क्वायर. दिस विल ऑल्सो बी गिविंग अस रिमाइंडर 1. ठीक है, सो वी कैन ब्रेक 2 to the power 100 एज 2 to the power 99 into 2, और 2 to the power 99 इज नथिंग बट 2 cube to the power 33 into 2. ठीक है, और 2 cube हमें रिमाइंडर दे रहा है 1 का. इफ वी डिवाइड दिस बाई 7 क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 2 क्यूब पे तो 1 मिलेगा, 2 क्यूब की किसी पावर पे 1 मिलेगा, और 2 पे 2 मिलेगा, तो इफेक्टिवली रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2. सिमिलरली 3 टू पावर में देखें तो 3 टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, बट ये आ रहा है 28 माइनस 1. माइनस 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो या तो 3 क्यूब पे देख लें और या फिर स्क्वायर कर दें फर्दर इसको. 3 टू पावर 6 पे देख लें, 3 टू पावर 6 पे हमें क्या होगा, 28 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो रिमाइंडर प्लस 1 मिल जाएगा. तो या तो 3 क्यूब पे देख लें, 3 टू पावर 100 हो जाएगा 3 टू पावर 99 इंटू 3, सो दैट विल बी 3 क्यूब टू द पावर 33 इंटू 3, एंड वी आर डिवाइडिंग बाई 7. तो ये आ जाएगा 3 टू पावर 3 पे हमें रिमाइंडर माइनस 1 मिल रहा है, माइनस 1 टू द पावर 33 इंटू 3, और पावर ऑड है, अगर पावर इवन होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ऑड है तो माइनस 1 होगा, यानी कि रिमाइंडर विल बी -3. और अगर जब भी रिमाइंडर नेगेटिव में है तो उसमें एक बार फिर से डिवाइजर ऐड कर दो, तो -3 + 7 रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4. तो 2 इज द रिमाइंडर इन केस ऑफ 2 टू पावर 100 एंड 4 इन केस ऑफ 3 टू पावर 100. तो रिमाइंडर हमारा टोटल आ जाएगा 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6. ऑप्शन डी. ओके, अदरवाइज सेम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं कि 2 टू द पावर, एक सेकेंड, 2 टू द पावर तो नहीं, a टू द पावर p - 1 अपॉन p, रिमाइंडर हमेशा 1 देगा इफ a एंड p आर को प्राइम एंड p इज अ प्राइम नंबर. जैसे हमारा 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो 2 टू द पावर p - 1 प्राइम -1 यानी 2 टू द पावर 6 बाई 7 विल बी गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू 1. सिमिलरली 3 टू द पावर 6 बाई 7 विल ऑल्सो बी गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू 1. तो उसके बाद का प्रोसेस कहानी एग्जैक्टली सेम है, इनको भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A shopkeeper finds that the selling price of 1500 items is equal to the cost price of X items if 20% of the items are damaged during the transit, and the shopkeeper still aims for an overall profit of 20% to find the value of X. Selling price of 1500 items is equal to cost price of X items. 20% of the items are damaged during the transit, and shopkeeper still aims for an overall profit of 20%. तो हुआ क्या, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल 100 आइटम्स थे इन टोटल, ठीक है, मान लेते हैं 100 आइटम्स थे और टोटल कॉस्ट प्राइस वॉज ₹100, यानी कि हर एक आइटम 1 रुपी ईच का था. 20% आइटम्स डैमेज हो गए, तो रिमेनिंग आइटम्स कितने बचे हैं, 80% आइटम्स बचे हैं, क्योंकि हमने 100 ही एज्यूम किया है, तो मान लिया 100 आइटम्स रिमेनिंग बचे हैं. और टोटल कॉस्ट प्राइस वॉज ₹100. तो अगर 80 आइटम्स ही बचे हैं, तो अब हमारे पास जो आइटम्स बचे हैं, कॉस्ट प्राइस फॉर देम इज ₹80. Isn't it so? ₹80 is the cost price for them, for the remaining items. Still, shopkeeper aims for an overall profit of 20%. भाई जो ओवरऑल प्रॉफिट है ये किस पे होगा, ओवरऑल टोटल आइटम पे होगा, 100% आइटम पे होगा, क्योंकि जो उसके डैमेज हो गए उन पे तो उसको कॉस्ट वसूल करना है ना. ठीक है, उन पे पैसा मिलेगा नहीं, बट वो प्रॉफिट वो कहाँ से लेगा, वो जो एग्जिस्टिंग आइटम्स बचे हैं उन पे लेगा. ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस है ₹80 फॉर रिमेनिंग 80 आइटम्स, बट उसको प्रॉफिट चाहिए. टोटल 100 आइटम्स का जो कॉस्ट था ₹100 था, ₹20 इस पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, यानी कि ₹120 टोटल इज हिज रिक्वायरमेंट. जब सेल करेगा ₹120 में, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा 20% का. ठीक है, सो ₹80 इज द कॉस्ट प्राइस एंड नाउ ₹120 द सेलिंग प्राइस. तो क्या सीपी और एसपी का रेशियो नहीं निकल आएगा यहाँ से. अगर सीपी हमारा ₹80 है, सेलिंग प्राइस ₹120 है इन सच ए सिनेरियो, इन दिस केस, ठीक है, सो हमारा सीपी एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी इज टू एसपी इज 2:3, 80 to 120, 2:3. ओके,
और फिर क्वेश्चन यही पूछ रहा है, शॉपकीपर फाइंड्स दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1500 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 1500 टाइम्स एस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स सी। तो सी बाय एस हमें पता ही है, दिस इज 2/3, बट सी बाय एस यहाँ से आ जाएगा हमारा 1500 बाई एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। 2 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2250। एक्स विल बी इक्वल टू 2250। ओके, या ऐसे देख लो कि ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज इक्वल टू एक्स इनटू कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमारा सीपीएसपी का रेशियो 2:3 है, तो जस्ट अपोजिट रेशियो का नंबर ऑफ आइटम्स का, सीपी इज टू एसपी के नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1500, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1500। तो 1500 की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 750, दैट इज 2250। डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 32 ऑन द बेस एन प्लस 14 ऑन द बेस एन इज इक्वल टू 50 ऑन द बेस एन, तो बेस एन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बेस एन इन दिस केस। 32 on base n plus 14 on base n, that is equal to 50 on base n. We have to find the value of base n. Now in base 10 number of digits कितना होता है, 10 होता है, from 0 to 9, largest digit in any base that is equal to n minus 1. Largest digit in base n that is always equal to n minus 1. तो क्या यहाँ से इतनी बात क्लिक नहीं करनी चाहिए, अगर हमें 50 मिल रहा है, नंबर 50 नंबर मिल रहा है, नॉट 50 एज सच बट 50, ठीक है, करेक्टली इसको 50 बोलेंगे। 32 ऑन बेस एन प्लस 14 ऑन बेस एन दैट इज इक्वल 50 ऑन बेस एन। तो क्लियरली हमें यहाँ पे जो 5 मिल रहा है, अगर 5 डिजिट मिल रहा है तो एन मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तो एन का वैल्यू 5 तो नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, हालांकि इक्वेशन बहुत ही सिंपल बनने वाला है यहाँ पे। 32 ऑन बेस एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2 प्लस 14 on base n is equal to n plus 4 and 50 on base n is equal to 5n plus 0। सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन है, तो 5n माइनस 4n, n इज इक्वल टू 6 आ गया। कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन बी इज द आंसर। अगर नंबर हमें मिले फॉर एग्जांपल 3 2 1 ऑन बेस n, तो दिस इज इक्वल टू, so for digit place value of first digit is 1, for second digit is equal to n to the power 1, and for third digit this is equal to n to the power 2, and so on. So this number becomes 3n square plus 2n plus 1. Okay. Next question. A bucket is in the form of a frustum of a cone. Radii of the top and bottom are 10 cm and 5 cm respectively. Then find volume of the bucket in centimeter cube. तो टॉप का रेडियाई है 10 सेंटीमीटर एंड बॉटम रेडियाई 5 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पे एक सेकेंड, 10 और 5 तो ठीक है, हाइट तो मेंशन ही नहीं है, हाइट विल बी इक्वल 12 मान लेते हैं, हाइट इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में हाइट तो मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, हाइट इक्वल 12 सेंटीमीटर, आप सॉल्व करो इसको। तो इन सच ए केस, जब भी हमें फ्रस्टम मेंशन है, small r is equal to 5, capital R is equal to 10, and height is given as equal to 12. So volume of such a frustum is equal to pi h by 3 into small r square plus capital R square plus small r into capital R. Okay. Put the values. So pi by 3 into 12 into small r square 25 plus capital R square 100 plus 5 into 10 50. So 4 pi into 175 and hence equal to 700 pi centimeter cube. Option A will be the answer. Okay.
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 5 है? एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो पहले मॉड को ओपन करेंगे, दो केसेस बनेंगे, या तो x if x is greater than equal to 5 mod will be opening with a positive sign, or if x is less than 5 mod will be opening with a negative sign. So if x is greater than equal to 5 mod will be opening with a positive sign, x square plus x minus 5 that is equal to 5. So x square plus x minus 10 that is equal to 0. रूट्स क्या आ जाएंगे, x will be equal to minus b यानी minus 1 plus minus root of b square यानी 1 plus 4ac 1 b square minus 4ac तो 1 plus 40 41 by 2 minus 1 plus minus root 41 by 2 रूट ऑफ 41 क्या आ जाएगा, रफली ये वैल्यू आएगा हमारा, और रूट 36 हो गया 6, रूट 49 हो गया 7, तो 6.4 के आसपास की वैल्यू आएगा। माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 6.4 बाई 2, तो 6.4 माइनस 1 5.4 बाई 2, एक वैल्यू आ जाएगा 2.7 रफली, एंड सेकेंड वैल्यू विल बी माइनस 7.4 बाई 2 यानी कि माइनस 3.7। बट अवर प्राइमरी कंडीशन वॉज दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बोथ वैल्यूज आर लेस देन 5, तो नीदर विल बी एक्सेप्टेड, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। सेकंड केस एक्स लेस देन 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 5 and 5 gets cancelled out, x square minus x यानी कि x into x minus 1 is equal to 0, so either x is 0 or x minus 1 is 0 यानी कि x is equal to 0 or 1, both are less than 5, both values will be accepted, x equal to 0 as well as x equal to 1, both values will be accepted, और यही दोनों रियल रूट्स होंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, these two will be accepted 0 and 1 and 2.7 and minus 3.7, these will not be accepted because both are less than 5, जबकि हमारा इनिशियल कंडीशन था that x should be greater than equal to 5, तो क्लियरली हमारे पास दो रूट्स आएंगे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? तो इन दिस सेशन इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। किसी भी क्वेश्चन को डाउट रहता है तो कमेंट जरूर क्वेश्चन मेंशन करना, और साथ में ऑल्सो गिव अ फीडबैक कि तुम्हें सेशन कैसा लगा। दैट्स ऑल ऑफ दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।